Any business is not about taking risks. People say that अरे business कर रहे हो, risk ले रहे हो. रिस्क लेना कभी बिजनेस नहीं होता है. रिस्क को मैनेज करना बिजनेस होता है. जैसे एक न्यूक्लियर आपका एनर्जी है, आप दो तरह से यूज कर सकते हैं. एक तो बम बना के फोड़ दो, लॉट ऑफ पीपल विल डाई. एक आप उसको मैनेज करके उसे पावर बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं. तो बिजनेस करना, स्टार्टअप करना, रिस्क को मैनेजमेंट करना है, रिस्क को प्ले नहीं करना है. Hello everyone, this is Krishnendu from Jam Story. Today with us Mr. P.L. Mittal, founder and executive chairman of Sasta Sindhu. How are you, sir? I'm fine, thank you, Krishnendu, and I must appreciate that you are such a wonderful person. Thank you, and sir. This is your amazing initiative. Thank you, I sir. duly appreciate Thank the you, way sir. you approach me, way you write to me. It's exciting. I found a good person after a long time. Thank you, sir. Thank you, sir. I just started, means I just want to build a good network with the startups. So that's why I just initiate this Jam Story. Means there are other companies also, the other media companies, they are directly taking charges. So I just think why I'm taking charges. I believe in relationship. So I just start this Jam Story to build some good relationship. That is the main reason of Jam Story. I appreciate your purpose is wonderful and novel. Thank you, sir. So, sir, can you, sir, please share me your journey to start this Sasta Sundar? No, I tell you, journey to start Sundar starts from the purpose. Every journey has a purpose. So first I tell you why Sasta Sundar. So Sasta Sundar is a Indian proverb, Sasta plus Sundar. Sasta denotes affordable and Sundar denotes high quality. So this is an Indian proverb that, once you go to the market, the Indians always say, Sasta Sundar le aana. Means something sasta and something sundar, high quality, which is available at affordable cost. And in case of some durable product, they say sasta sundar tikau. This sasta sundar is basically a high quality, affordable price. So this we took the hearts of the Indian households. Now, why Sasta Sundar? Sasta Sundar is a purpose. I started this business with a purpose. And the purpose is to solve one of the India's biggest problem of healthcare. So, very simply, I say that, the India is a country of yoga. And India is a country of Ayurveda. Still, India is capital of diabetic and chronic patients. India has more than 25 crore people living with one of the chronic disease, either diabetic, obesity, or blood pressure or heart attack. India is one of the largest producer of vegetables and milk in the world. And still India is 40 crore children who are malnutritions. India is largest producer of generic medicine in the world and third largest producer of the medicine in the world. And do you know 65% of Indians don't have access to medicine. So these two are the variant pictures. Ample resources, ample capabilities, and still the population suffer. So where is the problem? You have milk, you have vegetables, you have meat, you have chicken, you have fish, everything. And still you have the malnutrition. You have knowledge, wisdom like yoga. Still you have the diabetic, still you have the obesity. You have world's best medicine factories. Still majority of the population does not have access to medicine. So I deeply studied this, and this story belongs to every household. Look at my father. My father, 45 years, he got diabetic. He used to visit government hospitals. The doctor gave him some medicines, and he thought, after taking 7 days, he thought कि मेरा diabetes ठीक हो गया. But at 55 years, his kidney failed because of irregular medicine. In 4 saal he was on dialysis, and then he died. So, okay, in India we accept that 60 years is the death. So that is not the acceptable criteria. And then same thing I found with my mother also. Her health also suffered due to lack of proper health care. Then I found that this problem is of the majority of the household. It is not about me. And I got obesity because nobody told me about nutrition when I was 30. In school, nobody taught me what is yoga.
So I understood yoga only at the age of 40 years, Mhm. being an Indian. Mhm. So the problem lies that every resources we have, but there is no channel, there is no distribution system which is data driven. Mhm. And as a result, Mhm. uh, around 25% of medicines in India may be fake and counterfeit. Mhm. More than 50% prescriptions are written by the doctors who are not qualified as doctors. Mhm. And lot of corruptions and lot of manipulation in the distribution system. And there is no data where is what happening. So Mhm. the database distribution is lacking in India, and that results into unequal, inefficient distribution system. Mhm. So we thought to build a supply chain of healthcare, primarily pharmacy, diagnostic, and wellness, and combined together to be on the data-driven system, whereby we can build an efficient ecosystem, which is very efficient, which is data-driven, and which can reach to the last person who is at the margin, and which is inclusive. Inclusive means we should be able to provide appropriate health care, be to rich, to the poor, to the urban, to the rural, to the people who can use the internet, and to the people who cannot use the internet, to ladies, to gents, to youngsters, to old men, to a chronic patient or would be a chronic patient, or to a healthy person, to a non-healthy person. So an inclusive ecosystem which is built upon efficiency and which is built upon data-driven approach. So this Sasasundar.com was born. The So, idea of Sasasundar's ecosystem we took from the polio eradication in India. You know, India is a beautiful country where we have several uh, success stories. mhm. It is only that we pick up those success stories from that and scale. Mhm. So we took the success story from eradication of polio. What happened in polio? There was centralized warehouse, and then local help was taken from the localized NGO. So though boond zindagi ki Mhm. and centralized resources were pulled, and it became a campaign social event, and lot of local NGOs participated, local clubs participated, and as a result, we were successful in eradicating. Two, three things were lessons from this big national movement. One lesson is that you need a centralized resource pool Mhm. so that resources can be transferred Mhm. at a quick and in organized manner. And second thing is that you need a local support. Mhm. Where without local support, people afraid to trust in what you deliver, Mhm. and then people become lazy also. You know, the healthcare is not such that until emergency come, people don't feel that they are sick. So there is difference between sick care and health care. So we also build a similar system in Sasasundar, that we built an efficient technology platform that is supported by a centralized warehouse. We call that area logistics center. Mhm. And then every pin code or every particular area Mhm. has one local centers to which we call health buddy. Health buddy means friend of health. Mhm. So what happens that people who can use the internet, they can order at their website, at their app, or people who can't use the internet properly, they can telephone to Health Buddy, or they can walk into Health Buddy stores, give their orders. The Health Buddy check the prescription compliance agent because he's the local guy, so he knows the people in his locality. So people have trust, Mhm. and then all the orders come into centralized warehouse. We deliver to the Health Buddy, and Health Buddy delivers to the last mile to the people. And this got the attention of the people. This got the imagination of the people, and we were very successful. And I tell you, to take the example of West Bengal, Mhm. that from Calcutta to Gangasagar to Darjeeling to Malda to Bankura to Purulia to Bardhaman, everywhere you will find a Sasasundar Health Buddy. So I am also Complex. means regular user of Sasasundar. Means I regularly I purchase my further medicine from Sasasundar only. So and the best part of the delivery, it's very fast. I Right. get
when I order a medicine, the delivery is very fast. And obviously means 2 years back I suffered from jaundice. So that time Right. the medicine means the suddenly medicine requirements happen, and late night I ordered from Sasa Sundar, and the from next morning I get the medicine delivered in my home. So this is very fast. I means not imagine that time ki that's how fast Sasa Sundar can deliver the medicine. But yes, the person, the health buddy who is near me is Karim. So he just told me from this area he just delivered the medicine. So he just told me, no, right now our delivery is very fast. We got the means as you say, okay, I'm not right now the medicine is not coming from the center. This is right now in a local hub. I am just collecting from that local hub and delivering it to you. So this is a very good thing, and you this just done a great job there. The medicine is in in medicine. Everyone required medicine. You give us the good medicine and on timely deliver, and the prices is obviously means right now if I go on other store, local store, they are not even give us the 10%. मीन्स दे आर सेइंग कि आप 500 रुपए का ऑर्डर करो, उससे नीचे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 500 के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. सो दैट इज द थिंग मीन्स एंड हियर इन सस्ता सुंदर देयर इज डिस्काउंट टू मेनी अदर थिंग्स. मैं घर बैठे अपना हेल्थ चेकअप के लिए बुक कर सकता हूँ. There's too many things. So it's really sir. But आपने जिस टाइम पे स्टार्ट किया था, the session when the session was start, that time people are not digitalized. Right now people are digitalized. But उस टाइम पे आपने एक ऐसे why how can you decide that नहीं चलो सस्ता सुंदर को डिजिटलाइज करते हैं, लोग ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर करना चालू करेगा. हाउ कैन यू स्टार्ट दिस थिंग एंड थिंक टू डिजिटलाइज दिस सस्ता सुंदर? देखिए, हमने सस्ता सुंदर को 2013 इंडिया 2014 स्टार्ट में स्टार्ट में समझ लीजिए हमने स्टार्ट किया था, तो डिजिटल स्टोरी बिल्ट हो गया था इंडिया में. इतना लोग मेडिसिन ऑर्डर नहीं करते थे. हाँ, तो इसलिए हमने ये मॉडल बनाया कि हेल्थ बड्डी का मॉडल, ताकि जो लोग बाहर डिजिटली कंफर्टेबल नहीं है वो हेल्थ बड्डी को कांटेक्ट कर ले, वॉक इन कर ले, वहाँ पे मेडिसिन ऑर्डर कर दे. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आपने मेडिसिन खरीदी, आपने मेडिसिन कंज्यूम कर ली, नाउ यू फॉरगॉट, बट वी हैव द डाटा. Yes, that is the thing. You have bought the medicine from us, so 10 years later also we can analyze your prescription and your consumption. Exactly. And we can tell you that ये तुम्हारा मेडिसिन है, 2 साल बाद ये तुमको डायग्नोस्टिक टेस्ट की जरूरत है, इसका टेस्ट कराओ. और जो आप टेस्ट कराओगे वो भी हमारे डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड में बुक स्टोर हो जाता है. तो आप कहीं भी जाओ, आप अपना प्रेस्क्रिप्शन देख सकते हो, कहीं भी जाओ अपनी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हो. तो आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है दैट बिकम डिजिटलाइज. एंड आप देखिए कि कोई भी आप डॉक्टर के पास जाइए, आपका प्रेस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको अभी क्या होगा कि आप 5 साल बाद देखोगे, आप 5 साल में समझ लीजिए 10 प्रेस्क्रिप्शन अपलोड किए सस्ता सुंदर. 5 साल में हम आपको 10 प्रेस्क्रिप्शन का समरी बना के कैप्सूल बना देंगे, मेडिकल समरी. वो समरी आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको डॉक्टर आपको डिफरेंट प्रेस्क्रिप्शन देगा, बिकॉज वो ब्रीफली समझ जाएगा कि आपका हेल्थ हिस्ट्री क्या है. आपका लॉस हो सकता है प्रेस्क्रिप्शन, सस्ता सुंदर का रिकॉर्ड डिजिटाइज है, तो आपका हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल हो गया. और डाटा जो है वो कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कदापि बात नहीं करते कि वो फार्मा कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी, कि गवर्नमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो खुद कस्टमर के लिए है. बिकॉज आपके हेल्थ रिकॉर्ड जो आप मेडिसिन लिए हो, आपके बॉडी में गई, जो आपका टेस्ट किया है वो आपका एक रिकॉर्ड हो गया. आपका 1 साल 2 साल बाद जो भी आपका डायग्नोस्टिक हो, जो भी आपका नया प्रेस्क्रिप्शन हो, वो उसी हिसाब से होगा कि 2 साल पहले क्या हुआ था. Because that helps doctors to take a appropriate decision, not to give the medicine on test basis or a hurriedly basis, but the accurate diagnostic or right kind of prescription depends upon medical history. And medical history people don't preserve, they don't conserve it. So हमने डिजिटलाइज कर दिया पूरा रिकॉर्ड्स को. तो आप देखिए कि सस्ता सुंदर में आप जाएंगे तो सस्ता सुंदर में आप देखेंगे आपका सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज है. आप अपना उसको डाउनलोड कर लीजिए और सस्ता सुंदर अपने आप एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट बताता रहेगा. आपको, आप यदि डायबिटिक हो तो आपको डायबिटीज से अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको भेजता रहेगा, आपको बताता रहेगा. और फिर इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए जितने क्रोनिक पेशेंट्स है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि डाइट.
जैसे आयुर्वेद में एक प्रोवर्ब्स है जो मैं आपको बताऊं कि यदि आपको आपको आपका खाना सही है तो आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, और यदि आपका खाना सही नहीं है तो मेडिसिन कोई काम ही नहीं करती। तो डाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसलिए हमने आप सत्संग में दिया था, एक याना डाइट क्लिनिक है जो हेल्प करता है आपको मेडिसिन की क्वांटिटी रिड्यूस करने के लिए, आपका वेट रिड्यूस करने के लिए, आपको हेल्थी बनाने के लिए, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए। तो सस्ता सुंदर में ये नहीं है कि आप खाली दवाइयाँ खरीदते हो, नहीं। सस्ता सुंदर डेफिनेटली मेडिसिन देता है, मेडिसिन सेल करता है, डेफिनेटली इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट। पर मेडिसिन सेल करने का पर्पज है आपकी हेल्थ की केयर करना, और हम हेल्थ की केयर आपको मेडिसिन ज्यादा बेच के नहीं कर सकते। हम आपकी हेल्थ केयर तब होगा, मेडिसिन इज ए सिक केयर। आप सिक हो तो मेडिसिन का आपकी हेल्थ की केयर तब होती है जब आपकी मेडिसिन सेल करके, आपके प्रिस्क्रिप्शन लेके, उसको एनालिसिस करके, हमारी जो डायग्नोस्टिक जेनोपैथ लैब है उसको यूटिलाइज करके हम आपकी प्रॉपर डाइट करके आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने में मदद करें। तब सब सक्सेस है कि नेक्स्ट आपका प्रेस्क्रिप्शन आपने इस बार खरीदा, आप 6 महीना बाद डॉक्टर के पास जाओ सत्संग की हेल्प लेके, डायग्नोस्टिक की, वेलनेस की, याना डाइट की, और आपका डॉक्टर बोले कि अरे दिस इज द गुड प्रोग्रेस, ये आपकी 20% मेडिसिन कम करता हूँ, देन सस्ता सुंदर इज सक्सेसफुल। सत्संग इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं है कि 20 आपका 20% मेडिसिन बढ़ा दे, सत्संग का 20% मेडिसिन का ऑर्डर हो जाए, नहीं। सत्संग का सक्सेस तब है जब नेक्स्ट टाइम आप 20% कम मेडिसिन के ऑर्डर करो और 20% हेल्थ फूड के ज्यादा ऑर्डर करो। आप ड्राई फ्रूट्स खरीदो सस्ता सुंदर से, आप यहाँ सुंदर सुंदर स्वादिष्ट काजू खरीदिए, आलमंड्स खरीदिए, हैं, तो वो आप खाइए तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हमारी याना डाइट क्लिनिक से हेल्प लीजिए। तो हम ये चाहेंगे कि आपकी 20% मेडिसिन कम हो और 20% आपका हेल्थ फूड कैटेगरी बढ़ जाए, सो दैट आपका लॉन्ग टर्म जो न्यूट्रिशन कॉम्प्लीमेंट करना है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करना, वो पूरा हो जाए। तो यही सस्ता सुंदर का पर्पज है, और इसीलिए हम लोग काम करते हैं। Sir, when you just started on 2013 and 14 or 2014 के starting में, तो उस time पे sir, what are the difficulties you face to start? Means whenever any startup newly starting with a come with a new idea, so they are facing many difficulties. So what are the main difficulties you face that time? देखिए हम लोग क्या है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग को तो पहले ये समझना होता था मेडिसिन है क्या, फार्मासिस्ट क्या होता है। तो पहले तो इसका डोमेन का नॉलेज एक्विजिशन करने में हम लोग को टाइम लगा, और खूब स्टडी भी करना पड़ा, लोगों से कंसल्ट भी करना पड़ा, गलतियां भी बहुत हुई बिकॉज न्यू फील्ड था। पर सीखने में थोड़ा 2-3 साल बहुत डिफिकल्ट था। आईटी भी हमको नहीं आता था, तो टेक्नोलॉजी फार्मा सीख करके इसको इम्प्लीमेंट किया। पर जब एक पर्पज होता है ना, आपके माइंड में एक भूत सवार हो जाता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है, तो एक पर्पज के साथ आप आगे बढ़ते हो तो आपको प्रॉब्लम जैसी नहीं लगती, आप काम करते रहते हो। और जैसे अपने कवि गुरु रविंद्रनाथ जी टैगोर कहते हैं, यदि एकला साथ आ जाते, हाँ तो एकला चलो, वही है, सब साथ जुड़ जाते हैं तो लोग बाग आपके कलीग्स आपकी टीम बन जाती है। तो हमारी भी टीम है, बहुत प्यारी टीम है। एज ए टीम हम लोग को ऐसा कभी कोई परेशानी नहीं हुआ, और सब सपोर्टिव है। अपनी इंडिया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव है, इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव है स्टार्टअप्स इंडिया के लिए, आत्मनिर्भर भारत का। इवन अभी मैं आपको बता दूं कि जो आत्मनिर्भर ऐप कंटेस्ट आया था उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्ता सुंदर को मेंशन किया एज ए प्रोमिनेंट रिलायबल आत्मनिर्भर ऐप फॉर मेडिसिन डिलीवरी एंड हेल्थ केयर। तो ये जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करती है, तो उसमें आपका encouragement होता है। And I tell you, this is the best time for India and Indian startup to start with and to progress. India is very bright future, and we should be very, very progressive and pragmatic and positive in our approach. Sir, you just say you have a very good team. So what are the current team size you have? Almost 7 years. Current team हमारे 1200 प्लस लोग हैं हमारे डायरेक्ट पेरोल पे, और हमारे हेल्थ बटी है करीब 400-450 हेल्थ बटी है, तो उनके पास अब 1500 लोग होंगे, एक हेल्थ बटी के बाद 3-4 लोग भी बोले तो टोटल मिला के हमारे 3500 बंदों की टीम है। 3500। So and sir, हमने स्टार्ट किया था सर कितने टीम के साथ?
हमने स्टार्ट किया था तो करीब 10-12 लोग थे। 10-12 लोगों से हम लोग 3500 लोग तो हो गए और वी बिलीव इट विल क्रॉस 6000 पीपल वेरी सून। तो And बोलते हैं ना, आप जब साथ चलते हो तो आपके साथ टीम बनती जाती है। जब आपका exactly. पर्पस होता है कि आपका पर्पस डिफरेंट है तो टीम बनती जाती है। हमारा पर्पस सिंपल है कि हमको ये इंडिया की प्रॉब्लम को सोल्व करना है। हमारा ये पर्पस नहीं है कि भाई हम लोग कैपिटल रेज करें, बंद करें, फिर किसी को सेल कर दें, कदापि वो पर्पस नहीं। तो हमारा पर्पस है कि काम करना, साथ मिलके काम करना और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद करना। तो वही हम लोग लगे हुए हैं एंड हम लोग को खुशी मिलती है इसी में। सर अभी मतलब सस्ता सुंदर ने स्टार्ट, सर आपने मतलब कैपिटल के अगर हिसाब से बात करें तो आपने स्टार्ट कितना कैपिटल में किया था? अभी करंट टर्नओवर आपका कितना होगा अगर आप बताएंगे तो? करंट टर्नओवर हम लोग अभी जैसे जीएमई के कंटेस्ट में बताते हैं तो मैं बता दूं भी हमारा लास्ट अभी अप्रैल से जून में हमने करीब 18 लाख ऑर्डर्स डिलीवर किए। 18 lakhs order. And sir, what is the first आपने जब स्टार्ट किया था तो द फर्स्ट इनिशियल मंथ कितना ऑर्डर से स्टार्ट देखिए फर्स्ट 10-12 ऑर्डर आते थे पर डे के। हुआ? 10-12 ऑर्डर पर डे के आते थे। महीने के समझ लीजिए आप 300 ऑर्डर फर्स्ट महीने में इतने होते। वो देखिए रिटेल धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड होता है। तो 300 ऑर्डर पर मंथ से 6 लाख ऑर्डर पर मंथ तक गया अभी अप्रैल से जून में भी आप क्वार्टर एनालिसिस करेंगे। तो सर जो मतलब आपने जैसे बोला कि when you start the success and you don't have knowledge on this pharma industry, also in tech industry, but still you gain the knowledge and then you continue. आपने हार नहीं माना, आपने इसके build करते गए and आज Success Sundar is a brand and everybody and especially in West Bengal, I can say कि 90% of West Bengal user जो ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर करते हैं, सस्ता सुंदर का नाम सबको पता है, सस्ता सुंदर से ऑर्डर करते हैं। सो दिस यू जस्ट मेक समथिंग इज आप अचीव किया है आपने एंड आगे भी और बहुत अचीव होगा पूरा इंडिया पे। इस तरह से होगा जब भी जो अभी जो फिगर वेस्ट बंगाल पे आपने जैसे बोला कि टीम साइज करंटली 6,000 आपका टारगेट बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो दैट्स वेरी फाइन। सो बहुत सारा स्टार्टअप होता है जो कि स्टार्ट तो कर देता है बट वही ऑर्डर नहीं आता है। जैसे इस कोविड के सिचुएशन में बहुत सारा स्टार्टअप बंद हो गया है क्योंकि उनका मैनेजमेंट सही नहीं था। उन्होंने शॉर्ट टर्म गोल को लेके चालू किया था अपना बिजनेस को एंड दे कैन सर्वाइव एंड बहुत सारा स्टार्टअप बंद हो गया ड्यू टू दिस कोविड। एंड यहाँ पे आप कोई जो नया स्टार्टअप चालू कर रहे हैं उनके लिए कोई संदेशा देना चाहते हैं कि नहीं, अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो किस मोटिव को लेके चालू कर रहे हैं जिससे उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले? देखिए पहले तो मैं बता दूं, जैसे आपने वेस्ट बंगाल का नाम लिया, जितना वेस्ट बंगाल में पॉपुलर है सस्ता सुंदर ना, उतना ही एनसीआर में भी पॉपुलर है। ओके हम लोग वेस्ट बंगाल से एनसीआर गए, वहां भी उतना ही पॉपुलर है। फ्रॉम एनसीआर से सस्ता सुंदर डिलीवरी मैन गोज दिल्ली टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। We go to city of Vrindavan and have darshan of Krishna on daily basis. We go to Mathura to touch the holy town. So it is spreading in UP and Delhi, same as spreaded in West Bengal. And we have started in Maharashtra also. Jharkhand, we become the market leader in pharmacy. And Bihar, it is spreading. Northeast, it is spreading. It is spreading in Maharashtra. It is, and now we have started Pan India services. So wherever the health buddy network is not there, we send by courier. So anywhere in India, people can buy from Sasta Sundar right now, and they will get the equal service as they get in West Bengal. So and now I'm coming to your question. You asked me that what is my message for startups who are facing problems. So my only message to the startups is become Atmanirbhar. So if I am starting and I am dependent on some capital from outside, and then the capital becomes key to survive, then there is a system, there is a problem in ecosystem. So capital infusion should not be a question of survival. That should be the question of wish. So even if the capital is not coming, you should be able to survive by the ecosystem. So any startup, once you plan, you say that
you measure first that what is the risk and how to manage that. You know, any business is not about taking risk. People say that अरे business कर रहे हो, risk ले रहे हो. रिस्क लेना कभी बिजनेस नहीं होता है, रिस्क को मैनेज करना बिजनेस होता है. जैसे एक न्यूक्लियर आपका एनर्जी है, आप दो तरह से यूज कर सकते हैं. एक तो बम बना के फोड़ दो, लॉट ऑफ पीपल विल डाई. एक आप उसको मैनेज करके उसे पावर बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं. तो बिजनेस करना, स्टार्टअप करना, रिस्क को मैनेजमेंट करना है, रिस्क को प्ले नहीं करना है. तो एनी स्टार्टअप जो अपना प्लान बनाए उसमें they should have built one step risk management, second step risk management, third step risk management. If this does not happen, what will do? If this does not happen, what will do? If this does not happen, what will do? ये सारा करके भी फेलियर्स आएगी. 90% स्टार्टअप्स फेल. सो वो यदि फेलियर आती है तो एक देखिए डेस्टिनी है. कोई भी बिजनेस करिए, कोई भी आप इन्हें, अब आप जैसे समझ लीजिए कोई बिजनेस करिए, रेस्टोरेंट का बिजनेस करेंगे, आपने 1 साल से रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्टअप किया है, कोविड आ गया तो रेस्टोरेंट तो बंद है, पीपल आर नॉट गोइंग. आप कोई भी प्लानिंग करिए, आप ये तो कभी प्लानिंग नहीं कर सकते कि आपका रेवेन्यू 0 होगा. आप एक एग्जीबिशन सेंटर बनाते हैं, एग्जीबिशन में लोग आएंगे नहीं तो कहाँ से चलेंगे. आप कोई स्पोर्टिंग क्लब खोलते तो आएंगे नहीं लोग. तो ये तो कोविड तो कोई अजम नहीं कर सकता कि माय रेवेन्यू विल बी निल. तो दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल, दिस इज समथिंग डेस्टिनी. सो उसमें कोई बात नहीं, चलिए मैंने किया, नहीं चला. आप आज का सिचुएशन है, कोई बिजनेस नहीं चला, आप या दो यहाँ से कर सकते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए. सिचुएशन ठीक होता है तो आदमी आते हैं. प्रिजर्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर पहले की तरह हो जाएगा. और यदि वैसा सिचुएशन नहीं है तो भी डोंट गेट डिसहर्ट. देखिए चींटी है, दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, फिर दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है. एफर्ट्स करते रहिए. और अभी क्या होता है, देखिए एक मैं और चीज बता दूं आपको, सक्सेस स्टोरी दिखती है, फेलियर दिखता नहीं है. हाँ, आपको दिखेगा सक्सेसफुल है, पर मैं आपको बता दूं मेरा 2 वेंचर फेल हो चुका. आई गॉट सक्सेस इन सस्ता सुंदर, सो ये दिखता है अरे सस्ता सुंदर. पर उसके पहले मेरे 2 वेंचर फेल है, वो लोगों को दिखता नहीं है कि अरे these 2 ventures are failed. तो फेलियर्स इज नॉट सीन, सक्सेस इज सीन. पर यदि आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन से बात करेंगे तो उसके पीछे फेलियर्स की लाइन है. failed then he started, he failed then he started, then he became successful. So failure and success both are part of life. and इसमें 50% आपका मेहनत है, 50% मैं कहता हूँ डेस्टिनी है. तो इसमें आप कुछ हो जाता है तो वो डेस्टिनी है, उसको एक्सेप्ट करिए. तो इसमें 2 ही चीज है जो मैं कोई भी सिचुएशन को एनालिसिस करता हूँ. तो सिचुएशन ऐसी बनती है जिससे मैं हैप्पी नहीं हूँ. दिस इज द सिचुएशन आई एम नॉट हैप्पी. से टुडे आई एम नॉट हैप्पी विद माय स्टार्टअप पोजीशन. देन व्हाट आई कैन डू, आई शुड एनालाइज द सिचुएशन एंड शुड सी वेदर आई कैन चेंज इट. इफ आई कैन देन आई शुड स्टार्ट चेंजिंग इट. तो समझ लीजिए कोई इसमें फंड नहीं है, तो मेरे को लगता है कि क्या ऐसा सिचुएशन है कि इसमें कोई इन्वेस्टर आ सकता है, तो मेरे को रिनोड एनर्जी के साथ इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना चाहिए. और ऐसा सिचुएशन है कि इन्वेस्टर नहीं आ सकता है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इन्वेस्टर नहीं आएगा. फिर मैं देखता हूँ कि अब इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं हो सकता, न तो मेरे पास है न कोई इन्वेस्टर आ रहा है. फिर मेरे को देखना चाहिए कि बिना कैपिटल के मैं इसको चला सकता हूँ क्या. फिर मैं देखता हूँ कि नहीं चला सकता हूँ तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर इज आल्सो सक्सेस, बिकॉज यू रीगेन योर एनर्जी. है ना. तो ऐसा कुछ नहीं है. सक्सेस इज नॉट ओनली एक्सेप्टेंस ऑफ सक्सेस, सक्सेस इज आल्सो एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर. यदि आप फेल है कोई चीज में, यदि उसको फेलियर का आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं फेल हूँ, उसी मोमेंट में आप सक्सेसफुल है. बिकॉज देन योर माइंड गेट्स कूल, योर सोल गेट perfect peace, and you become a peaceful man. You are energetic to start afresh. When you are energetic to start afresh, you are a successful. That's a very good line, sir. So sir, thank you sir. Thank you sir for giving us such a time, and thank you everyone. अगर आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर ये पॉडकास्ट में सुन रहे हैं या तो आप फेसबुक यूट्यूब में देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सस्ता सुंदर से ऑब्वियसली ऑर्डर कीजिए. सर इज सेइंग कि सस्ता सुंदर इज नॉट फॉर टू सेलिंग मेडिसिन. सस्ता सुंदर इज टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ. इट्स नॉट अबाउट
to how many medicines you are offering. It's all about how many healthcare foods. As I said, सर आपका मेडिसिन ज्यादा ऑर्डर करने से नहीं, सस्ता सुंदर का नहीं है। सस्ता सुंदर का मेन टारगेट है कि आप कितना हेल्थ कंसर्न है एंड आपका दवाई कम आप ऑर्डर कर रहे, आप हेल्थ फूड ड्राई फूड ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। सर ने बहुत अच्छा चीज बोला कि आप सेल कीजिए, आप हमसे लीजिए, बट मेडिसिन मत लीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जिससे आपका भी हेल्प हो, आपका भी हेल्थ सही हो एंड सस्ता सुंदर का भी हम लोग भी आपको हेल्प कर पाए। तो दैट इज द थिंग एंड दैट्स आल्सो आई कैन से कि हमारे चैम्प स्टोरी इज ए न्यू स्टार्टअप। यहाँ पे हम लोग चैंपियंस लाइक सर के तरह चैंपियंस का स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे हैं। एंड आप लोग इसको यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए नया वीडियोस के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम।